Good morning, dear children. Today we start here exercise 9.3 of class 8 maths, and here some word problems are here. Now the first question is, and this in this chapter this chapter is area and volume. So dear children, here I will tell you here some word problems are here. So dear children, first question is, find the area of a wall of a classroom 4.5 meter height and 6 meter wide. So dear children, height of a wall of a classroom equal 4.5 meter. Then breadth of a wall of a classroom is 6 meter. Then area of any rectangular figure, any rectangular classroom, any rectangular table, any rectangular playground. So the area of a rectangular playground or rectangular field or rectangular classroom equals length into breadth. So here height is given here and breadth is given here. So the height is, यदि आप suppose ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी ये नोटबुक है, इसको यदि आप ये ऊंचाई पे देख रहे हैं, इसको यदि हम ऐसा कर दें कि क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो। ओके, सो हाइट को हमने यहाँ पे लेंथ मान लिया। सो द हाइट ऑफ क्लासरूम इज 4.5 मीटर। सो द एरिया ऑफ अ वॉल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय breadth. So 4.5 multiplied by 6 because breadth is 6 meter. So 6 5 are 30, 0 carry 3, 6 4 are 24 plus 3 equal 27 and 1 digit decimal है तो 1 digit हम decimal लगा देंगे तो ये हो जाएगा 27.0 मीटर स्क्वायर। सो ये चिल्ड्रन यहाँ हमने 0 को नहीं लिखे चाहे नहीं लिखे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो 27 मीटर स्क्वायर। आप ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट एरिया की है। यदि आप मीटर स्क्वायर यदि स्क्वायर आपने नहीं लिखा तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने कहां से आया, क्योंकि एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर होती है, आपने लगाया नहीं। सो आपको ये यूनिट जरूर लगाना है, ध्यान रखिए, इससे आपका मार्क्स कटता है। और ये आपका यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये आंसर रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपने मीटर स्क्वायर की यूनिट लगाई है, यानी आपने एरिया निकाला है। यदि आपने मीटर स्क्वायर की यूनिट नहीं लगाया, मीटर यानी स्क्वायर, आप मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्क्वायर होना चाहिए। और हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप 2 लिखिए या SQ लिखिए, वो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ओके, सो द एरिया ऑफ अ वॉल इक्वल 27 मीटर स्क्वायर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ अ स्क्वायर टेबल whose each side is 80 centimeter. So dear children, here the table is square shape. Now the side of a square table is 80 centimeter. So dear children, area of square table equal side multiplied by side. We write here S into S. S into S means side multiplied by side. So the area of a square table is side multiplied by side equal 80 multiplied by 80 equal 8 is just 64 and 2 0 here. We put the 2 0 here means 6400 or 6400 square centimeter. Just I explained you here. You can write 2 or SQ. Okay, this is unit of square. This is also unit of square. So is meter square or square. Okay, so 6400 square centimeter is the area of square table is 64 square meter. Now the third question is what will be the cost of mowing grass in a rectangular field of dimension 240 meter by 120 meter at the rate of rupees 10 square meter.
So dear children, length of a rectangular field is 240 meter and breadth of a rectangular field is 120 meter. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं बताया है कि which is length or which is breadth, but this number is greater, so this is a length and this is a breadth. Okay. Now dear children, in this question, how we find? In this question we find the area or we find the perimeter. How? हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें इसको एरिया निकालना है या हमें इसका पेरीमीटर निकालना है या क्या निकालना है? क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मोइंग ग्रास. आपको कॉस्ट निकालना है ग्रास का. जो हम फील्ड में ग्रास लगाते हैं उस ग्रास का हमें कॉस्ट निकालना है. तो हम उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो हमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये एरिया ही निकालना है हमको. तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा है कि जब इसकी कॉस्ट इसकी कॉस्ट का किसी भी क्वेश्चन में यदि कॉस्ट उसकी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कहने का कि स्क्वायर में उसकी कॉस्ट होता है. यहाँ पे देखिए स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो बता रहा है इस ग्रास की कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 10 रुपए. तो यहाँ पे ये स्क्वायर यूनिट किसकी है? एरिया की. तो जब एरिया की स्क्वायर यूनिट में कॉस्ट बता रहा है इसमें हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे. यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे. यदि यही कॉस्ट स्क्वायर में नहीं बताता, ये बोलता कि रुपीस पर 10 पर मीटर मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट बता रहा है, तब हम यहाँ पे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. ओके. बट यहाँ पे स्क्वायर में उसकी कॉस्ट बता रहा है तो हम एरिया फाइंड करेंगे. यही आपको ध्यान रखना है. यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको ये एरिया का चैप्टर है तो एरिया निकालना है. नहीं, ऐसा नहीं. आपका क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी कैसे भी आ सकता है. तो आपको ये पहचानना है कि एरिया कब निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में. यदि उसकी प्राइस या कॉस्ट स्क्वायर में दिया है तो आप जानते हैं स्क्वायर यूनिट किसकी होती है? एरिया की. तो हम उसमें एरिया निकालेंगे. और यदि आपका स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा है तब आप उसकी यूनिट ये मतलब 1 की कॉस्ट बता रहा है तो आप पेरीमीटर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. So dear children, length of a rectangular field is 240 meter, breadth of a rectangular field is 120 meter. So the area of field equal length multiplied by breadth. We write here L into B. So length into breadth equal 240 multiplied by 120 equal 28,800. This is a meter. So we write here meter square. So according to the question, the cost of a mowing grass is rupees 10 per square meter. So the cost of 280 meter square feet, यहाँ पे हमने फील्ड दे लिखा है क्योंकि ये एरिया ऑफ फील्ड की ये एरिया है. तो इतने मीटर स्क्वायर के फील्ड में जब ग्रास लगेगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो इसलिए हमने पहले एरिया निकाली और फिर 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो द कॉस्ट ऑफ 28,800 meter square feet equal 28,800 multiplied by 10 equal rupees. Once 10,100,000 10,000 lakh 2,88,000 rupees. Okay. So the cost of mowing grass is rupees 2,88,000. Clear? So dear children, this question is completed. Now the next question, question number 4. Now dear children, question number 4. Now the question number 4 is 100 bricks of length 24 centimeter and breadth is 15 centimeter each are used to tie a path
what is the area of the earth? So dear children, length of a brick equal 24 centimeter, breadth of a brick is 15 centimeter. So the area of brick equal length multiplied by breadth equal 24 multiplied by 15 equal 360 centimeter square. So we write as centimeter square because the length and breadth of the brick is unit is centimeter. Okay. So now according to the question, how many bricks are here? 100 bricks. So the each bricks is length 15 and breadth is 24 and breadth is 15 centimeter. But how many bricks is 100 bricks? So we find here that one brick, the area of one brick is 360 centimeter square. So the total number of brick is 100. Then the area of 100 bricks equal. So the area of what equal 360 multiplied by 100 equal 36,000 square centimeter. Dear children, here the length and breadth of each brick, not 100 brick, length of and breadth is each brick is 24 and 15 centimeter. And here in the question is asking how many, find the area of, what is the area of what? So the total number of bricks equal 100 and the area of one brick is 360 centimeter. So we multiply area of what equal 360 multiplied by 100 equal 36,000 square centimeter. So the area of what equal 36,000 square centimeter. Now the question number 5. How many tiles of length 8 centimeter and breadth 5 centimeter will be needed to tiles the floor of a dining space 400 centimeter long and 200 centimeter wide? So dear children, here we find the number of tiles. What number of tiles? Suppose this is your classroom. In this classroom, the length of this classroom is 40 meter and breadth is this classroom is 20 meter. To then, how many tiles are required to create this to cover the floor? So dear children, first we find the area of this floor, then we find the area of tiles, then area of the floor divided by area of the tiles. But your units should be equal. Both units, area of square and area of floor and area of tiles. So dear children, here already unit is same. Length of tiles is 8 centimeter, breadth of tiles is 5 centimeter. Length of floor is 400 centimeter, breadth of floor is 200 centimeter. If suppose the length is फ्लोर इज 400 मीटर, यदि आपका लेंथ फ्लोर की जो लेंथ है वो मीटर में होता है और लेंथ टाइल्स की एरिया सेंटीमीटर में बताता है, तब आपको क्या करना, तब आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे, बिकॉज हियर वी फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स. हम किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज, वो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. इसकी यदि मीटर में है तो इसकी भी मीटर में होनी चाहिए, इसकी सेंटीमीटर में तो इसकी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए. बट यहाँ पे हमें टाइल्स निकालना है तो आपकी फ्लोर की भी यूनिट टाइल्स की यूनिट से मैच होनी चाहिए. यदि टाइल्स की यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपकी फ्लोर की भी यूनिट सेंटीमीटर में होना चाहिए. यदि ये मीटर में होता तो हम इसकी यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर या किसी में भी होता. क्योंकि हमें टाइल्स निकालनी है तो हमें इसकी यूनिट को चेंज करना पड़ता, ना कि इसकी यूनिट. ओके, हम इसकी यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है. तो लेंथ, बट हियर नंबर ऑफ size of tiles is, length of tiles is 8 centimeter, breadth of tiles is 5 centimeter and length of floor is 400 centimeter, breadth of floor is 200 centimeter. So the number of tiles needed हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर दिया है. आप चाहे मेथड वही है,
आप चाहे तो पहले इसकी एरिया निकालें। फर्स्ट you find the area of tiles, then you find the area of floor, then number of tiles equal area of the floor divided by area of the tiles। तब आप यहाँ पे ऐसे करते हैं, बट हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ लिखा है, एंड हियर वी राइट द नंबर ऑफ टाइल्स laid in इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, यही है। सो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है। एरिया ऑफ टाइल्स इज आल्सो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही साइड स्क्वायर में होता तब हम यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल length is 400 centimeter and breadth is 200 centimeter, and length of tiles is 8 centimeter and breadth of tiles is 5 centimeter. So 8 to 1 is 8, 8 5 is 40 and 1 0, 5 1 is 5, 5 4 is 20 and 1 0 equal 5 4 is 20 and 2 0, here we write here 2 0. So 2000 tiles. So how many tiles are required to cover the floor? Thus 2000 tiles are required to cover the floor. आप हमने ऐसा किया है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि आप एरिया ऑफ टाइल्स निकालते तो 400 into 2000, 200 equal 4 2 is 8 and 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन ये तो स्क्वायर की रेक्टेंगुलर फ्लोर की एरिया आ गई। अब टाइल्स की एरिया निकालते हैं आप, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल 8 into 5 इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना होता तब आप क्या करते, 80,000 डिवाइडेड बाय 40, 1010 कट लिया, 4 1 is 4, 4 2 is 8 and 2 3 0 here, so 2000 टाइल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पहले आप अलग अलग निकालते, पहले आप एरिया इसकी निकालते, फिर इसकी एरिया निकालते, फिर आपको ये लिखना पड़ता नंबर ऑफ टाइल्स लिखे, तो फिर आप इसकी एरिया को इसकी एरिया से डिवाइड करना पड़ता। आपने हमें यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, एरिया ऑफ फ्लोर एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लिखा हमने फ्लोर की, क्योंकि पहले हमने ऊपर फ्लोर लिखा है, नीचे लिखा है एरिया ऑफ टाइल्स, तो एरिया ऑफ टाइल्स की लेंथ और ब्रेड्थ हमने लिखा, और फिर इनको हमने कट कर दिया, तो आ गया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड 2000 टाइल्स। ओके डियर चिल्ड्रन, this question is completed. On the next question I will tell you in the next video. Okay, thank you, have a nice